کیا اس پانی کو آسمانوں سے بادلوں سے ہم نے نازل کیا یا تم خود اپنے آپ پر نازل کر لیے؟ یہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ماں کے سینے سے خون کو دودھ بنا کر تمہارے بچپن میں تم کو دودھ پلا کر تمہارے ہڈیوں میں طاقت اللہ عطا کر، فلسطین میں اللہ کا خیر برستا ہے، کبھی ترکستان میں، ترکی میں زلزلوں کی شکل میں بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی عمارتوں کو زمین بوس اللہ بنا دیتا ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا رب العالمین ہے، دونوں جہاں کا خالق اور مالک ہے، اسی کے لیے ہم جیتے اور مرتے ہیں، ہماری عبادتیں اسی کے لیے، ہمارا جینا اسی کے لیے، ہمارا مرنا اسی کے لیے۔ درود نازل ہو سارے نبی و رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 7 جولائی بروز جمعہ مسجد محمدی اہل حدیث امبر پیٹ آکاش نگر میں حیدرآباد کی میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی آپ کے سامنے شکر گزاری کے کیا فائدے ہیں، ناشکری کرنے کے کیا برے انجام اور عذابات ہیں، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفکر کرنے کھڑا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ سبا کی 19ویں آیت میں کہتا ہے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ یقیناً اللہ کی اس کائنات میں بہت سی نشانیاں ہیں جو اللہ عز و جل کے لیے حد سے زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ اللہ کی شکریہ ادا کرنے والا۔ ایک بندہ مومن کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ ناشکرا پن اور نافرمانی پن یہ شیطان اور ابلیس کا کام ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ایک مومن کو بن کر رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کی حدیث میں، مومن کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کو بھلائیاں عطا کرتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، دولت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اچھے دن اس کے رکھتا ہے، ایسے عالم میں اگر وہ اللہ کا شکریہ بجا لائے گا، اللہ اسے ڈھیر سارا ثواب سے مالا مال کرے گا۔ مومن کو اگر مصیبت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، بھوکا فاقہ کشا پن گزار رہا ہے، بہت زیادہ غربت اور قرضداری اور بیماری کے دنوں سے گزر رہا ہے،
मुसीबत और आलाम के अय्याम से गुजर रहा है, ऐसे आलम में अगर वो सब्र करेगा, अल्लाह ताला उसे तब भी बेइंतहा अजर व सवाब से मालामाल करेगा। मुसीबतों में सब्र करने पर अजर, खुशियों के दिनों में शुक्र करने पर अजर। अल्लाह के नबी सुनन नबी दाऊद की हदीस में बयान फरमाते हैं, जामे तिर्मिजी की रिवायत में, अल्लाह ताला जब मैं रात में तहज्जुद की नमाज में उठकर अल्लाह की इबादतें करता, लंबे लंबे क़ियाम करता, रुकू करता, सजदे करता, पेट में खाना ना होने की वजह से मेरे पैरों में सूजन आ जाया करती थी, मेरे पैरों में वर्म आ जाया करता था, मैं कई देर तक सजदे में जाकर गश की हालत में गिर जाता। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मुझे जिब्राईल अमीन के जरिए ये ऑफर पेश किया, मेरे नबी अगर आप हाँ कहें, इस मक्के की जो सबसे बड़ी वादी है, वादी बतहा जिसे कहते हैं, ये वादी बतहा आपको सोने से, चांदी, हीरे, मोतियों से हम भरकर अता करेंगे। बोलिए चाहिए आपको? खैसरो किसरा के खजाने लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। इतना फाखा कशी आप क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के नबी ये ऑफर देखकर अपने सर को सजदे में रखकर अल्लाह के शुक्रिये में रोते हुए कहते हैं, मेरे अल्लाह मुझे खैसर और किसरा के खजाने नहीं चाहिए, मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की ऐश और आराम नहीं चाहिए। अल्लाह जिस दिन तू रोजी देगा तेरा शुक्रिया अदा करूंगा, जिस दिन मुझे रोजी नहीं मिलेगी उस दिन रोजे की नियत कर लूंगा। अल्लाह ये गुर्बत के अय्याम मेरे लिए बेहतर है, वो दौलत मुझे नहीं चाहिए। अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमतनी मिस्कीना वहशुरुहु फी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामा। मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख, मिस्कीनों में मौत दे, क़यामत के दिन भी जगह है तो मिस्कीनों में मुझे जगह। हम लोग दौलत देकर जिंदा रख, दौलत वाला बना के जिंदा रख, मरे तो भी करोड़पति बना के मौत दे, उठे क़यामत में तो भी अरबपतियों में जगह। हमारी तमन्ना है, हमारी दुआएं, हमारे नबी मिस्कीन बना। क्यों? इंसान का दिल शुक्रगुजार बंदा बनकर रहता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह तबारक व तआला सूरह इब्राहिम की 34वीं आयत में कहता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो हरगिज हरगिज शुमार नहीं कर सकते। सूरह कहफ के आखिरी आयतों में अल्लाह कहता है, सारे समंदरों को सियाही बना लो, सारे दरख्तों को खलम बना लो। अल्लाह ने जितनी नेमतें सर से लेकर पैर तक तुम्हारे बदन में दे रखी हैं, तुम्हारे घरों में दे रखे हैं, अल्लाह की इन नेमतों को लिखते बैठो। कसम उस अल्लाह की, ये 7 समंदर खत्म हो जाएंगे, खल में दुनिया के तमाम दरख्त लिख लिख कर घट जाएंगे, लेकिन अल्लाह की वो नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी जो अल्लाह ने आप पर निछावर कर रखा है। हमारे सर से लेकर पैर तक हमारे बदन में, हमारे जिस्म में कितनी नेमतें हैं। 50 साल 60 साल तक हमारी किडनियां सलामत हैं, बगैर उसे चार्जिंग किए अपना काम कर रहे हैं, बगैर उसे फिल्टर किए अपना काम कर रहे हैं। 50-60 साल के बाद जब किडनी में खराबी आती है, स्टोन पैदा होता है, किडनी फेल होती है, हम अपनी हर दुआओं में किडनी का नाम लेकर दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे गुर्दे बराबर कर दे, मेरे किडनी के तकलीफ को दूर कर दे, मेरी किडनी फेल हो रही है उसे बचा ले, ऐ अल्लाह मेरे गुर्दों की हिफाजत कर। 60 साल में कभी किडनियों का नाम लेकर शुक्रिया अदा किए? ऐ अल्लाह उस भाई की किडनियां फेल हो गई जो डायलिसिस कराते हुए जिंदगी मौत के कश्मकश में तड़प तड़प के जी रहा, मेरी किडनियां सलामत रखा। अल्लाह मैं मेरी इन सलामत वाली किडनियों पे तेरी शुक्रिया अदा। कभी आपने शुक्रिया अदा किया? आज आपके मुंह में दांत है, कभी आप उस दांत का जिक्र नहीं करते, अल्लाह का शुक्र नहीं करते। जिस दिन उस दांत में कीड़ पकड़ेगा, जिस दिन आपके मुंह से दांत निकल जाएंगे, चबाने के लायक नहीं बचेंगे, तब आपको दांतों की कदर क्या है मालूम होगी। आज आपकी आंखें हैं, कभी आंखों की नेमत आपको नहीं मालूम, आंखों की कदर नहीं मालूम। जिस दिन आपकी दोनों आंखों की बीनाई जायल हो जाएगी, देखने से कासिर हो जाओगे, उस दिन पता चलेगा ये नेमत कितनी बड़ी थी। आज जाकर देखो अस्पतालों में 24 घंटे, एक दिन 7 घंटे 6 घंटे
ऑक्सीजन रखकर हमारी बॉडी को ऑपरेशन किया जाता है। 6 घंटे ऑक्सीजन का लाखों बिल बनाते हैं डॉक्टर लोग। बचपन से लेकर इतनी जवानी बुढ़ापे तक अल्लाह ने हजारों टन नहीं करोड़ों टन ऑक्सीजन फ्री में हमको रोजाना दे रहा है। कभी उस ऑक्सीजन का शुक्रिया अल्लाह के लिए आपने अदा किया? हमारे फेफड़े अल्लाह की नेमत, हमारा दिल अल्लाह की नेमत, हमारा जिगर अल्लाह की नेमत, हमारी किडनियां अल्लाह की नेमत, हमारा भेजा अल्लाह की नेमत। अरे मामूली भेजा, उस भेजे के अंदर का एक हिस्सा, उस हिस्से के अंदर अगर दूरबीन में रखकर माइक्रोस्कोप में देखे, हजारों रगें होती है, बारीक बारीक नसें। रात में जब हम सोते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं तुम्हारे बदन के 360 जोड़ होते हैं। जब सुबह में तुम उठते हो, अल्लाह ताला सही सलामत तुम्हें सुलाता है, सही सलामत तुम्हें जगाता है। अल्लाह के शुक्रिया के लिए तुम क्या करते हो? अल्लाह के नबी हमको क्या करना चाहिए? तुम्हारे 360 जोड़ों के बदले 360 दिरहम रोजाना सुबह में अल्लाह के रास्ते में सदका देना चाहिए। अल्लाह के नबी हम में से कोई 360 दिरहम कमाता नहीं, रोजाना सदका कहां से करेंगे? नबी ने कहा अगर ये नहीं कर सकते, सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह अकबर कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, रास्ते से तकलीफदा चीज हटाओ, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, यहां तक कि तुम्हारी बीवी के मुंह में मोहब्बत से निवाला खिलाओगे, वो भी तुम्हारे लिए सदक़े में शुमार होगा। अल्लाह के नबी इतनी सारी नेकियां रोजाना करना मुमकिन नहीं है। नबी ने कहा 2 रकात इशराक की नमाज पढ़ लो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। रात में जब हम सोए 360 जोड़ों को सही सलामत सुलाया, सुबह में जब हम उठे अल्लाह सही सलामत उठाया। हमारे भेजे का एक छोटा हिस्सा जिसमें हजारों नसें होती हैं, अगर अल्लाह हुक्म दे दे उन नसों में एक नस को कि तू अपना काम करना बंद कर दे, हमारे बदन का आधा हिस्सा सुबह तक लकवा मार रह जाएगा, हमारे बदन को लकवा लग जाएगा, फालिज के असर से हम नाकारा हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने हमें लकवा नहीं मारा, अल्लाह ने हमारे बदन को लकवा नसीब नहीं किया। अल्लाह हमारे जिस्म के हाथों पैरों, भेजा, सर, हमारे चेहरे, हमारे पैर को सलामत जगाया। हमने कभी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया? अरे उठने की दुआ तक नहीं पढ़ते हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना। शाह तारीफ उस अल्लाह की जिसने मेरी मौत के बाद मुझे दोबारा जिंदा किया। हम शुक्रिया अदा करते, तारीफ बयान करते। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? किसी अंधे को देखो, किसी लंगड़े को देखो, किसी डायलिसिस के मरीज को देखो, किसी कैंसर के मरीज को देखो, किसी बड़ी बीमारी में मुलविस इंसान को देखो, तो अल्लाह से शुक्रिया भी ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि उस तकलीफ से तूने मुझे आफियत में रखा, ऐसे मरीज तू मुझे नहीं बनाया, ऐसा लंगड़ा, लूला, अंधा मुझे नहीं बनाया। कभी अल्लाह के उन बंदों को देखकर आप अपने लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किए? अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। अल्लाह कुरान में बार बार कहता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा होता है, बड़ा नाशुक्रा होता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्नद अहमद की भी ये हदीस है। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने भूखे, नबी को खाना घर में नहीं है, पेट पर पत्थर बांध कर दिन गुजार रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से निढाल होकर बाहर निकल पड़े। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले, सलाम दुआ किए, बोले ये आपका खैलूला करने का वक्त है, कहाँ निकल पड़े हो? बस ऐसे ही निकला हूं, भूख ने मुझे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। अबू बकर तुम क्यों निकले हो? अल्लाह के नबी मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया, भूख ने मुझे निकलने पर मजबूर कर दिया। रास्ते में उमर बिन खत्ताब मिले, सलाम दुआ हुई, क्यों निकले हो, क्या वजह है? आपका आराम करने का वक्त है, घर में बहुत ज्यादा भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ भी घर में नहीं है, भूख ने मुझे बाहर निकलने पर मजबूर किया है। दो सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। हजरत अबुल हैसम अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेत पर गए, जो खजूरों का बाग था, लेकिन वो घर पर नहीं थे, चबूतरे पर बैठे। थोड़ी देर में आए, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे देखकर समझ गए आप बहुत ज्यादा भूखे हैं। जाकर खजूर का खोशा लेकर आए जिसमें अदगदरी खजूरें थी, आधी कच्ची आधी पक्की, लाकर रख दिए। छुरी लेकर बाहर निकले, नबी समझ गए ये हमारे लिए बकरी ज़बह करके लाना चाहते हैं। नबी कहते हैं अबुल हसन
बच्चे वाली बकरी को ज़बा ना करना, दूध देने वाली बकरी को ज़बा ना करना। ठीक है, अल्लाह के नबी जाकर बकरी ज़बा करके भून के तैयार करके लाए, खजूर खाए, पानी पिए, बकरी का गोश्त खाए। जब वापस जा रहे, अल्लाह के नबी कहते हैं, हाज़ा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मिनन नईम, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। ऐ अबू बकर, ऐ उमर, सुनो, अल्लाह की कसम, ये वो नेमतें हैं जिनके बारे में तुसअलूना यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, हमसे सवाल करेगा। किस चीज के बारे में? ज़िल्लुल बारिद व रुतबुन तय्यिब व माउन बारिद। अल्लाह ने हमको, हम धूप में निकले थे, ठंडा साया अल्लाह ने अता किया। व रुतबुन तय्यिब, हम बड़े भूखे थे, अल्लाह ताला ने तरोताजा खजूरें हमको खिलाया। हम बहुत ज्यादा परेशान थे, अल्लाह ने ठंडा मीठा पानी हमको पिलाया। इन नेमतों के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमको क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन नेमतों के बारे में पूछेगा जो नेमतें अल्लाह ताला ने तुमको रोजाना खिलाता पिलाता है। अल्लाह ताला जो नेमतों से तुम्हें मालामाल करता है, इन नेमतों के बारे में अल्लाह तुमसे क़यामत के दिन पूछेगा। अल्लाह के नबी कहते, बुखारी की रिवायत, अल्लाह के सामने बंदा रहेगा, बंदे के सामने अल्लाह रहेगा, कोई दरमियान में ट्रांसलेटर तर्जुमान नहीं रहेगा। अल्लाह सवाल करेगा, बंदा जवाब देगा। अल्लाह अपनी नेमतों के बारे में पूछेगा, बोल मेरे बंदे, क्या मैंने तुझे अलम तुसही लका जिस्मक, अलम तुसही लका जिस्मक, क्या मैं तुझे हट्टा कट्टा जिस्म नहीं दिया था? क्या मैं तुझे खूबसूरत तंदुरुस्त तवाना जिस्म नहीं दिया था? हाँ अल्लाह, बेशक तूने मुझे दिया। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, व नुरियका मिनल माइल बारिद, क्या मैं तुझे पीने के लिए ठंडा पानी नहीं दिया? हाँ अल्लाह, बेशक तूने दिया। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, व ज़व्वजुतुक, क्या मैं तेरी बीवी और बच्चे तेरे दिल के सुकून के लिए नहीं दिया था? हाँ अल्लाह, मेरी बीवी बच्चे भी तू मेरे दिल के सुकून के लिए दिया। ये दुनिया का माल, ये दुनिया के फल फ्रूट, ये दुनिया की सवारियां, ये गाड़ियां, ये तमाम फूल फल, ये हवा, ये सारी नेमतें तेरे फायदे के लिए बनाया, तेरे लिए मैं इतनी नेमतें दिया। बता तू मेरी इबादत कितनी करके आया, मेरा शुक्रिया कितना बजा ला के लाया। अल्लाह तबारक व तआला जब सवाल करेगा बंदे से अपनी नेमतें याद दिला दिला के, बंदा लाजवाब हो जाएगा। अल्लाह ऐश और इशरत में पड़ गया, अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा करना भूल गया, अल्लाह तेरी इबादत करने के लिए वक्त नहीं मिला, अल्लाह मुझे दुनिया में भेज, अब मुझे होश आ गया है, अल्लाह तेरी इबादत करके आऊंगा, अल्लाह तेरा शुक्रिया बजा ला के लाऊंगा आऊंगा, ऐ अल्लाह मुझे दुनिया में रवाना कर। अल्लाह हरगिज नहीं रवाना करेगा, अल्लाह हरगिज नहीं रवाना करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में सूरह वाक़िया में बयान फरमाता है, अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, जो पानी तुम रोजाना पीते हो, जो पानी तुम रोजाना पीते हो, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून, क्या इस पानी को आसमानों से बादलों से हमने नाजिल किया या तुम खुद अपने आप पर नाजिल कर लिए? फिर अल्लाह ताला कहता है, इतना ही नहीं, लौ नशाअ जअलनाहु उजाजा, अगर हम चाहते इस पानी को खारे से खारा बना देते, पीने के लायक नहीं छोड़ते। अगर हम चाहते आसमान से नाजिल होने वाले इस पानी को मुकम्मल खारा बना देते। जानते हो यह पानी कहां से आता है? साइंस को पूछिए, साइंस कुरान से तहकीक करके बताती है कि यह पानी जब धूप की शुआएं समंदरों पर करोड़ों अरबों खरबों एकड़ समंदरों पे पड़ती है, भाप की शक्ल में यह पानी आबर की शक्ल में आसमान में जाता है, खारा पानी आसमान में जाता है, लेकिन अल्लाह मीठा पानी बनाकर उसे आसमान से नाजिल करता है, ऐसी जमीनों पर नाजिल करता है। अल्लाह ताला कहता है कि इन्ना नहनु, बेशक हम हैं, मिनस समाई मा, जो आसमानों से पानी बरसाते हैं। और इतना ही नहीं, मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं, फल फूल उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, तुम्हारे लिए अनाज उगाते हैं, ताजा ताजा अच्छे मीठे फल तुम्हारे लिए हम उगाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फिर इसी आयत में आखिर में कहता है, ऐ मेरे बंदो, इतना सब होने के बाद अफला तशकुरून,
क्या तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे? ये सब देखने के बावजूद भी क्या तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे? अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में जा बजा कहता है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है अफला यशकुरून, ये लोग मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान में सूरह क़सस की 73वीं आयत में, सूरह रूम की 52 नंबर आयत में, सूरह नहल की 14 नंबर आयत में, सूरह नहल की 78 नंबर आयत में बार बार अल्लाह कहता है लअल्लकुम तशकुरून, मेरे बंदो यही वो अल्लाह है जो आसमानों से बादल पानी नाजिल करता है बादलों के जरिए ताकि तुम्हारे लिए फल फूल उगा सके। अफला तशकुरून, क्या तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते? यही वो अल्लाह तबारक व तआला है जो समंदरों में तुम्हारे लिए हवाओं को चला के तुम्हारी कश्तियों को मोड़ मोड़ के तुम्हारी कश्तियां चलाता है। अफला तशकुरून, क्या तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते? यही वो अल्लाह तबारक व तआला है जो तुम्हारे लिए औलादों की नेमतें अता करता है और तुम्हारे दिल के सुकून के लिए चौपाइयों को बनाया ताकि तुम उनको काट कर उसका गोश्त खा सको, नेमतों से फायदा उठा सको। अफला तशकुरून, क्या तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते? यही वो अल्लाह तबारक व तआला है जो तुम्हारे लिए, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माँ के सीने से खून को दूध बनाकर तुम्हारे बचपन में तुमको दूध पिलाकर तुम्हारे हड्डियों में ताकत अल्लाह अता करता है। अफला तशकुरून, क्या तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते? मेरे भाइयों, यही वो अल्लाह ताला है जो शहद के मक्खी के मुंह में फूल का रस देकर उसे शहद का खतरा बनाकर तुम्हारे लिए शिफा, उसमें रहमत और शिफा बनाकर तुम्हारे लिए बनाता है। क्या तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते? मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान में हमारे इबरत के लिए कई लोगों के इबरत अंजाम वाक़या बयान किया। अल्लाह कहता है क्या तुमने बनी इसराइल को नहीं देखा? वो बनी इसराइल जिनके लिए आसमान से धूप लगती तो हम साया बना देते, वो बनी इसराइल जो कभी ऐसे बियाबान मैदान जहां पानी नजर नहीं आता मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि हमको पानी चाहिए, यही चाहिए। अल्लाह कहता है फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरता आइना, मेरे मूसा अपनी असा को पत्थर पर मारो, अल्लाह के हुक्म से वहां 12 चश्मे फूट पड़ेंगे पानी के, उनको तुम्हारी कौम को पिलाना। जब धूप लगती तो बादलों के जरिए साया अल्लाह बना देता, प्यास लगती तो पत्थरों से पानी निकाल देता, भूख लगती तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से मन्ना व सलवा इनके लिए उतारा। लेकिन इन्होंने क्या किया? अल्लाह का नाशुक्रापन किया, अल्लाह की नाफरमानी इन्होंने किया। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से इबरत का निशान बनाकर इनको दुनिया से हटा मिटा दिया। कई एक अजाब इन पर नाजिल किया, टिड्डियों का अजाब आया, जुओं का अजाब आया, मेंढकों का अजाब आया, खहसाली का अजाब आया, खून का अजाब आया। अल्लाह तबारक व तआला खतरनाक अजाबात से दो चार करके दुनिया से इबरत का निशान बनाकर इस नाफरमान नाशुक्री कौम को दुनिया से हटा मिटा दिया। और ये वाक़या कुरान में हमारे लिए उम्मत मोहम्मदिया के लिए बयान किया। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुमसे पहले के कौम वालों को जब भी हमने नेमतें दी उन्होंने नाशुक्रापन किया, हमने दुनिया से इबरत का निशान उनको बना दिया। तुम ऐसा नाशुक्रापन ना करना वरना तुमको मसलने में देरी नहीं लगती, जैसे उनको हमने दुनिया से मिटा दिया। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुमको भी अजाब देने में देरी नहीं लगती। अल्लाह के नबी की दुआ है, अल्लाह मेरी उम्मत को आसमान के अजाब से हलाक मत कर, मेरी उम्मत को जमीन के अजाब से हलाक मत कर जैसे पिछली उम्मतों को हलाक कर दिया। अल्लाह ने ये दो दुआएं कबूल कर ली जिसकी बिना आज उम्मत मोहम्मदिया एक झटके में अजाब से बर्बाद नहीं होते। कभी फलस्तीन में अल्लाह का कहर बरसता है, कभी तुर्किस्तान में, तुर्की में जलजलों की शक्ल में बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी इमारतों को जमीन बोस अल्लाह बना देता है। कभी मुल्क शाम में, कभी सीरिया में अल्लाह ताला दुनिया के चप्पे चप्पे में जलजले अजाब अल्लाह ताला मयस्सर करता है। क्यों? दूसरे लोग इससे इबरत हासिल करके शुक्रगुजार बन जाएं, इबादत गुजार बन जाएं, अल्लाह के सजदे करने वाले मुत्तकी परहेजगार बन जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ये झटके दिखाता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब ईद उल फितर, ईद उल अजहा की नमाज पढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे औरतों के जमात के पास से, तो आपने कहा या माशरन निसा तुसद्दिकुहुन्न, ऐ औरतों की जमातों, अल्लाह के रास्ते में तुम ज्यादा से ज्यादा सदका करो।
فإني أريتكن अक्सर अहले नार, इसलिए कि मैंने जहन्नम में मर्दों से ज्यादा औरतों को देखा है। अरे अल्लाह के नबी, हमारा जुर्म क्या है, हम क्यों रहती हैं? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि तुक्सिरनल लाना व तुकफिरनल अशीर, तुम अपने शौहर की हद से ज्यादा लान तान करती हो और अपने शौहर का नाशुक्रापन करती हो। एक शौहर अपनी बीवी के लिए कमाता है, खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है, उड़ाता है, जिंदगी कुर्बान कर देता है, 50 साल तक अच्छा खिलाया, अच्छा रखा, अच्छे घरों में रखा, 50 साल के बाद इसका कारोबार ठप पड़ गया, वो अच्छे कपड़े अब नहीं ला सकता, ऐसे गाड़ियों में अब नहीं घुमा सकता, आलीशान बंगलों में अब नहीं रख सकता, फौरन उसका तिजारत डाउन हो गया। फौरन ये नाशुक्रियापन में कहती है कि मैं जब से तुम्हारी जिंदगी में आई हूं, मार आई तो मिन का खैरुन खत्ता, मेरी जिंदगी में मैंने तुमसे कभी खैर नहीं देखी, कभी सुख मैंने नहीं पाई, कभी अच्छे दिन तुमने मुझे नहीं दिखाए। ये बोलकर शौहर का नाशुक्रापन करती है। ये जुमला अल्लाह को इतना नापसंद है, इतना नापसंद है, अल्लाह उठाकर जहन्नम में पटक देता है, अल्लाह उठाकर जहन्नम में डाल देता है। अल्लाह कहता है उम्मत मोहम्मदिया, नाशुक्रापन मत करो। अल्लाह कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं मजीद नेमतों से तुम्हें मालामाल करूंगा। वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरा नाशुक्रापन करोगे मेरा अज़ाब सख्त है, ये जान लो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, पहले के उम्मत में बनी इस्राइल में 3 लोगों को अल्लाह आजमाया, एक कोढ़ की बीमारी वाला, एक गंजा, एक अंधा। तीनों के पास अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता आता है, सवाल करता है, अल्लाह तुझे कोई नेमत देना चाहे क्या मांगेगा? मेरा कोढ़ दूर हो जाए, लोग मुझे बस्ती से निकाल दिए हैं मेरे बीमारी की वजह से, मेरा कोढ़ दूर हो जाए। अल्लाह का नाम लेकर वो दुआ पढ़कर हाथ फेरता है, उसका कोढ़ चला जाता है। अल्लाह नेमत अगर देना चाहे, दौलत, कौन सी दौलत पसंद है? मुझे ऊंटनी पसंद है, एक हामिला ऊंटनी देकर दुआ बरकत की करके आगे बढ़ता है। ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे कोई नेमत देना चाह रहा, क्या मांगेगा? मेरे सर पर कभी बाल मैंने नहीं देखे, जब से पैदा हुआ मैं गंजा हूं, लोग मुझे गंजा कहते, मेरे सर पर बाल आ जाए मैं यही मांगूंगा। बरकत की दुआ पढ़कर हाथ फेरा, उसके बाल आ गए। अल्लाह दौलत देना चाह रहा तो क्या मांगेगा? मुझे गाय पसंद है, एक हामिला गाय देकर बरकत की दुआ किया, आगे बढ़ गया। बनी इस्राइल का तीसरा आदमी जिसे अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है, अंधा। बोल, अल्लाह नेमत तुझे देना चाहे तो क्या मांगेगा? मेरी आंखें आ जाए ताकि मैं दुनिया देखूं, अब तक दुनिया नहीं देखा। बरकत की दुआ पढ़कर अल्लाह के हुक्म से हाथ पर, आंख पर हाथ फेरा, उसकी बसारत आ गई। अल्लाह दौलत देना चाहे, कौन सी दौलत पसंद है? मुझे बकरी ज्यादा पसंद है, मैं बकरी चाहता हूं, एक हामिला बकरी, एक गाबन बकरी, प्रेग्नेंट बकरी, उसे देकर बरकत की दुआ पढ़कर आगे बढ़ गया। अब चंद सालों के बाद ये ऊंटनी, ये गाय, ये बकरी बच्चा पैदा करती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके बच्चे, उसके बच्चे, ये तीनों अपने अपने शहर में बहुत बड़े बड़े मालदार बन जाते हैं। अल्लाह जिसे दौलत देना चाहे उसे कौन रोके? अल्लाह जिसे फकीर बनाना चाहे उसे कौन अल्लाह के हुक्म के बिना दौलत अता करे? तीनों बड़े मालदार बन गए। यही फरिश्ता, अल्लाह ने इस फरिश्ते को फकीर बनाकर इन तीनों के पास रवाना किया। ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे अल्लाह के नाम से दे, मैं बड़ा फकीर हूं, मैं बड़ा मोहताज हूं, मैं मुसाफिर हूं, बहुत भूखा हूं, मुझे अल्लाह के नाम पर दे। मेरे पास कुछ भी नहीं, चलो आगे बढ़ो। अरे ऐसा मत कर, मैं बहुत दूर से आया हूं, बहुत परेशान हूं। याद कर वो जमाना जब तू कोढ़ की बीमारी में था, तू खाने को तरसता था, अल्लाह तुझ जैसे बीमार को सेहत अता किया, तुझ जैसे फकीर को दौलत अता किया। मैं आज उसी अल्लाह के नाम पर मांग रहा हूं, मुझे दे दे। मैं ना कभी कोढ़ी था, मैं ना कभी फकीर था, शायद तुमको गलतफहमी हुई, मैं हरगिज नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। इनकार कर दिया उसने, नहीं दिया। अल्लाह का ये फरिश्ता कहता है, अगर तू सच कहता है ऐसा ही रहना, अगर तू झूठ कहता है अल्लाह तेरी पिछली हालत को लौटा दे, तेरी पुरानी हालत में अल्लाह तुझे भेज दे। फिर आगे जाता है, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे अल्लाह के नाम पर दे, मैं बहुत भूखा हूं, बहुत मुसाफिर हूं, दूर से आया हूं, बहुत परेशान हूं, मुझे अल्लाह के नाम पर दे।
ए मैं नहीं देता, जा जो करना है कर लो, मैं नहीं देता। अरे अल्लाह के बंदे ऐसा मत बोल। याद कर वो जमाना जब तू गंजा था, अल्लाह तुझे बाल दिया। जब तू फकीर था, अल्लाह तुझे दौलत दिया। मैं ना कभी गंजा था, मैं ना कभी फकीर था, मैं हरगिज नहीं दूंगा। जो करना है कर लो। अरे अल्लाह के बंदे, अगर तू सच कहता है तू अपनी हालत में रहना, अगर तू झूठ कहता है अल्लाह तेरी पिछली हालत में तुझे लौटा दे, फिर आगे बढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अंधे के पास आता है, कहता है अरे अल्लाह के बंदे मुझे अल्लाह के नाम पर दे, मैं मुसाफिर हूं, बहुत भूखा हूं, मुझे उस अल्लाह के नाम पर दे जिस अल्लाह ने अपनी कुदरत से तेरी आंखें बनाई। तू कभी अंधा हुआ करता था, अल्लाह ताला तुझे देखने के काबिल बनाया। तू कभी खाने को तरसता था, अल्लाह तुझे आज खाकर दूसरों को खिलाने के काबिल बनाया। आज मैं मुसाफिर हूं, बहुत भूखा हूं, अरे अल्लाह के बंदे मुझे उस अल्लाह के नाम पर दे जिस अल्लाह ने अपने रहमो करम से तुझे दौलत दिया, आंखें दिया, बसारत दिया। ये सुनकर वो अल्लाह का बंदा रोने लगा और ये कहने लगा तू कौन है मेरे भाई, तेरा एक एक जुमला सच्चा है, तू बिल्कुल सच कहता है। यकीनन मैं अंधा था, यकीनन मैं फकीर था, मैं देख नहीं सकता था, अल्लाह ने अपने रहमो करम से मेरी बसारत लौटा दी और मैं खाने का मोहताज था, आज मैं खाकर दूसरों को खिलाने के काबिल बना हूं, दौलत उस अल्लाह ने मुझे दिया। ऐ मुसाफिर, ऐ फकीर, अगर तू उस अल्लाह के नाम पर मांगता है ये सारी दौलत ले जा, ये सारी दौलत मेरे अल्लाह की दी हुई अमानत है, अल्लाह के रास्ते में मैं देने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर वो फरिश्ता कहता है मुबारक हो, मुबारक हो, ऐ अल्लाह के बंदे तेरे दो साथी अल्लाह के इम्तिहान में फेल हो गए और तू अल्लाह के इम्तिहान में पास हो गया। ये जान ले मैं वही फरिश्ता हूं, कभी अल्लाह के हुक्म से तेरी आंखों पर दुआ पढ़कर हाथ फेरा था, मैं वही फरिश्ता हूं जो अल्लाह के हुक्म से तुझे गाबन बकरी देकर दुआ पढ़कर गया था। आज अल्लाह ने मुझे फकीर बनाकर भेजा ये देखने के लिए कौन उसके शुक्रगुजार बंदे हैं, कौन उसके नाशुक्रिया बंदे हैं, कौन उसके रास्ते में देने वाले हैं, कौन उसके रास्ते में ना देने वाले कंजूस और वकील हैं। ऐ अल्लाह के बंदे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह तुझे मजीद दौलत से मालामाल करे। क्यों? इसलिए कि तुम मोहताजों को, गरीबों को, फकीरों को देने वाला है। अल्लाह तेरे दो दोस्तों को बर्बाद कर दिया, फिर से फकीर बना दिया, उसे गंजा बना दिया, उसे कोड़ी बना दिया, जो अल्लाह की नेमत को अल्लाह के रास्ते में देने से इनकार किया और अल्लाह की नेमतों का नाशुक्रापन किया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं उन्जुर मा अस्फल वला तंजुर मा फौकक। तुम अपनी जिंदगी में अपने दिल को शुक्रगुजार बंदा बनाए रखने की खातिर अपने से कमतर लोगों पर निगाहें रखा करो, अपने से ऊंचे लोगों पर कभी निगाहें मत रखो। ये मत देखो मैं नमाज पढ़कर भी गाड़ी साइकिल चलाता हूं, पैदल चलता हूं, ये बेनमाजी होकर भी कारों में घूम रहा है। मैं अल्लाह का मुत्तकी बंदा होकर भी रोटियां और दाल खाता हूं, ये अल्लाह का नाफरमान बंदा होकर भी बिरयानियां और बड़े बड़े बंगलों में रहता है। कभी भी अपने से ऊंचे हैसियत वालों पर निगाह मत रखो, अपने से कमतर गरीबों फकीरों पर निगाह रखो। वो देखो तो तुम्हारा दिल शुक्रगुजार बंदा बनेगा। उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जाओ उन लोगों को देखो जो फुटपाथ पर सोते हैं, अल्लाह ने उसे रहने के लिए छत भी नहीं दिया। अल्लाह मेरा छोटा मकान ही सही मुझे मकान दिया, उसके पैरों में जूतियां तक नहीं, मेरे पैरों में अल्लाह ताला जूतियां दिया। उसे पहनने के लिए कपड़े तक नहीं, अल्लाह मुझे पहनने के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े दिया। मेरे भाइयों, कभी भी अपने से नीचे लोगों पे निगाह रखो, तुम्हारा दिल शुक्रगुजार बंदा बना रहेगा। हमारे नबी ये दुआएं किया करते थे, अल्लाहुम्मा लका ज़क्कारा, लका शक्कारा, लका सब्बारा। ऐ अल्लाह, मैं तेरा हद से ज्यादा शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूं, तेरा जिक्र करने वाला बंदा बनना चाहता हूं, तेरा इबादत करने वाला बंदा बनना चाहता हूं। हमेशा अल्लाह के नबी ये दुआ करते थे। और अल्लाह के नबी सही बुखारी मुस्लिम की हदीस में मुआज इब्न जबल से कहते हैं, वल्लाही ला उहिब्बुका या मुआज, वल्लाही ला उहिब्बुका या मुआज, फिदाका अबी व उम्मी। सारे सहाबा
नबी से कहते थे, नबी हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। लेकिन ये जुमला नबी मुआज इब्न जबल से कहते थे, फिदा का अबी व उम्मी, ऐ मुआज मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। वल्लाहि ला उहिब्बुका या मुआज, अल्लाह की कसम मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं ऐ मुआज, अल्लाह की कसम मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं ऐ मुआज। ये बोलने के बाद नबी कहते हैं, ला तदउन्ना फी कुल्ली दुबरी सलातिन, ऐ मुआज ला उसीका या मुआज, ऐ मुआज मैं तुम्हारी जिंदगी में एक वसीयत करता हूं, इस वसीयत को याद रखना, इस वसीयत को याद रखना। ये वसीयत करने से पहले क्या बोल रहे हैं नबी? कसम मेरे अल्लाह की मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान है मुआज, मेरी वसीयत याद रखना। ला तदउन्ना फी कुल्ली दुबरी सलात, कभी भी जिंदगी में हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना कभी मत छोड़ना, कभी भी ये दुआ पढ़ना मत छोड़ना। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। किस मामले में? 3 मामले में। अल्लाह जिक्र का, हर हमेशा तेरा जिक्र मैं बयान कर सकूं, वो शुक्र का, हर हाल में मैं तेरा शुक्रिया बजा ला सकूं, वो हुस्न इबादती का, मैं हर हाल में तेरी अच्छी इबादत बजा ला सकूं। अल्लाह मेरी जबान को तेरे जिक्र से तर रखने वाले जिक्र में तू मेरी मदद फरमा, हर हालत में तेरा शुक्रिया अदा कर सकूं, ऐसा शुक्रगुजार दिल मेरा बना दे, हर हाल में मैं तेरी अच्छी से अच्छी इबादत कर सकूं, ऐसी इबादत करने में तू मेरी मदद फरमा। ऐ मुआज कभी जिंदगी में ये दुआएं तू कभी मत छोड़ना। जब हम ये दुआ पाबंदी से पढ़ेंगे अल्लाह हमारा दिल इंशाअल्लाह शुक्रगुजार बनाए रखेगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं जब तक इस कायनात में अल्लाह जिंदा रखा है हमको उसका बेइंतहा शुक्रिया बजा लाने की तौफीक अता फरमाए, उसके नाशुक्रापन से, उसके नाफरमानी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जितने भी नेमतें अल्लाह ने हमको दिया है उन नेमतों पर अल्लाह का बेइंतहा शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमाए। उन नेमतों का शुक्रिया दुआओं की शक्ल में, इबादत की शक्ल में, जिक्र अस्कार की शक्ल में हमको अल्लाह का शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।